Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel The Studious Kids. I am here again with a new video. As you can see on the screen, our today's video is about An Unit in English, My Grandmother by Khushwant Singh. Before we start story, let us see the author's introduction and the summary. Our author is Khushwant Singh. Khushwant Singh is one of the most well-known Indian writers of all time. Besides being a renowned writer, he was also a lawyer and a journalist. An alumnus of St. Stephen's College in Delhi and King's College London. Khushwant Singh started his career as a lawyer for several years before joining the Indian Ministry of External Affairs in 1947. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, made into film in 1998, which later became his most well-known novel. In 2007, he was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India. Few among his well-known books are Train to Pakistan, 1956, Delhi a Novel, 1990, The Company of Women, 1999, Truth, Love and a Little Malice, 2002, and The Good, the Bad and the Ridiculous, 2013. खुशवंत सिंह इंडिया के काफ़ी फेमस राइटर हैं और राइटर के साथ साथ वो एक लॉयर और जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली एंड किंग्स कॉलेज लंदन से की है। उनके करियर के शुरुआती कुछ ईयर उन्होंने एज ए लॉयर काम किया और उसके बाद वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में ज्वाइन हुआ 1947 में। 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया का से जो उन्हें एक्सपीरियंस मिला उससे इंस्पायर होकर उन्होंने 1956 में एक बुक लिखी जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, कि जिस पर 1998 में एक मूवी बनाई गई और वो ये बुक बाद में जाके उनकी सबसे फेमस बुक बनी। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नॉवल, द कंपनी ऑफ वुमेन, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिश, The Good, the Bad and the Ridiculous. Sorry. Now let us see the summary of the story. The story recounts author's memory of his grandmother. He spent many memorable years with her when they lived together away from his parents. He recounts many poignant memories of her as he was growing up. They adored each other and she accompanied him when he went to school. The relationship changes as he grows up. He beautifully captures his grandmother's quite resilient life and her independence. इस स्टोरी में ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताए हुए वो मोमेंट्स रिकाउंट किए कि जो उनकी लाइफ के गोल्डन मोमेंट्स थे। उन्होंने वो रिकाउंट किया कि कैसे वो साथ में स्कूल जाया करते थे, कैसे वो उन्हें तैयार किया करती थी और जो भी उन्होंने मोमेंट्स बिता है उनके साथ विलेज में वो सारे रिकाउंट किए हैं। So now let's go to the main story, My Grandmother. First of all, I will read the para and then I will explain to you. My grandmother. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer while she bathed and dressed me. She thought that I would listen and get it to by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and a sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her फॉर द विलेज डॉग्स। ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब ऑथर के पेरेंट्स उन्हें विलेज में छोड़कर गए सिटी में रहने के लिए, तब वो और उनकी ग्रैंडमदर साथ रहा करते थे। उनकी ग्रैंडमदर उन्हें हर रोज़ सुबह उठाती थी, नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी और इसी के साथ साथ वो मॉर्निंग प्रेयर भी गाया करती थी ताकि ऑथर भी सीख सके। ऑथर भी वो मॉर्निंग प्रेयर सुनते थे, लेकिन क्यों सुनते थे? क्योंकि उनको उनकी ग्रैंड मदर की आवाज़ अच्छी लगती थी।
इसलिए ऑथर की ग्रैंडमदर उनके लिए वुडन स्लेट, अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, ये तीनों चीज़ों को टाई करके ऑथर को दे देती थी। ये तीनों चीज़ उनके स्कूल की जो गुडीज़ होती है वो थी। और वो सुबह ब्रेकफास्ट किन चीज़ का करते थे? अ थिक स्टेल चपाटी, अ लिटर बटर एंड अ शुगर स्प्रेड ऑन इट। ये उनको वो ब्रेकफास्ट कराती थी और थोड़ी सी चपाटीज़ उनके साथ भी रख देती थी विलेज के स्ट्रे डॉग्स के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to a temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either sides of veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside, reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling, fighting with each other for the chapatis we threw to them. ऑथर और उनके ग्रैंड मदर साथ में स्कूल जाया करते थे क्योंकि स्कूल और टेम्पल दोनों अटैच था, साथ में एक दूसरे का पास में ही था। ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर स्कूल में बिठाती थी और वो खुद टेम्पल जाती थी, जहाँ पे प्रीस्ट ऑथर को अल्फ़ाबेट सिखाते थे और उसके साथ ही मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। चिल्ड्रंस सब रोज़ में बैठ के वरंडा एक छोटी सी जगह होती है कि जहाँ पे बैठने की जगह हो, बैठ सकते हैं वैसी, वहाँ पे बैठ के अल्फ़ाबेट सिंग करते थे या प्रेयर गाते थे। और जब दोनों और उनकी ग्रैंड मदर उसी टाइम पे टेंपल में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और जब दोनों का अपना अपना वर्क फिनिश हो जाता था तब वो साथ में घर वापस जाते थे। और घर जाने के टाइम उन्होंने जो स्टील चपाटीज़ ली हैं वो उन स्ट्रे डॉग्स को खिलाते थे कि और वो ही स्ट्रे डॉग्स उन चपाटीज़ के लिए लड़ते थे और झगड़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, so she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए अच्छे से, तब उन्होंने ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर को भी वहाँ पे बुला लिया। और ऑथर का ये कहना है कि जब उन्हें सिटी में बुलाया गया तो ये उनके और उनकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सेम रूम तो शेयर किया था सिटी में, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर पहले की तरह उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं आती थी और ऑथर भी पहले की तरह चलते नहीं जाते थे, वो एक बस में जाते थे और वहाँ पे कोई स्ट्रे डॉग्स नहीं थे। सो उनकी दादी, उनके ग्रैंड मदर स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी जो उनके सिटी के कोर्ट यार्ड में आते थे। एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गया वो लोग काफ़ी कम बात करने लगे। और उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी टाइम तक उन्हें सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। और जब ऑथर स्कूल से वापस आते थे तब उनकी ग्रैंड मदर उन्हें पूछती थी कि आज क्या करा, तो ऑथर उन्हें बताते थे कि थोड़ी इंग्लिश के वर्ड्स कराए और थोड़ी वेस्टर्न साइंस वो उन्हें सिखाते थे ग्रैंड मदर को। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her secularism with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoons did she relax for a while to feed the sparrows. जब ऑथर यूनिवर्सिटी में आए तब उन्हें उनका एक अलग रूम दे दिया गया था, जिससे उनके जो कॉमन फ्रेंडशिप था उनकी ग्रैंड मदर से वो स्नैप्ड हो गया। इसके बाद ग्रैंड मदर उनकी जो थी वो पूरे दिन सिर्फ़ और सिर्फ प्रेयर ही करती थी और बीच में नून के टाइम पर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। When I decided to go abroad for the further studies, I was sure my grandmother would be upset.
I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. उन्होंने ऑथर ने बाद में डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जा रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, और उन्हें लगा कि ये उनकी ग्रैंड मदर के लिए सबसे अपसेट कर देने वाली चीज़ होगी. शी वॉज नेवर नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी at railway station but did not talk or show any emotion. After 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई, लेकिन उन्होंने कुछ इमोशंस शो नहीं किए. आफ्टर 5 years जब ऑथर वापस आए तो वो उनकी ग्रैंड मदर से रेलवे स्टेशन पर मिले, और वो बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी कि जो उन्हें 5 years पहले लग रही थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the drum and sang of homecoming of warriors. We had to pursue her to stop avoiding overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. और उसी शाम एक अजीब चीज़ हुई कि उनकी ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया. उन्होंने आजू बाजू की जो नेबर्स में जो वुमेंस थी उन्हें बुलाया, एक ओल्ड ड्रम लाई और उन्होंने गाना शुरू किया. तो काफ़ी आवर्स तक उन्होंने ड्रम बजाया और गाना गाया. वो गाना कौन से थे? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो एक स्पेशल फोक सॉन्ग्स आते हैं वो. घर वालों ने उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि वो उन्हें स्टॉप करा सके, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली सैंग करते रहेंगे तो उन्हें ओवर स्ट्रेनिंग भी हो सकती थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऑथर ने देखा कि उनकी ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. She said that since she had omitted to pray a few hours before the close of the last chapter of her life, she was not going to waste any more time talking to us. दूसरे दिन सुबह वो ईल हुई, उन्हें तबीयत उनकी बिगड़ी. डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा कि ये माइल्ड फीवर है और चला जाएगा, लेकिन ग्रैंड मदर ने कुछ अलग सोचा. उन्होंने कहा कि उनका एंड नियर है, और उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ आज से प्रे नहीं किया, इसलिए मैं तुम सब लोगों से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. She was dead. जो फैमिली थी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगा. ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना. वो पीसफुली अपने बेड में ले हुई, प्रेइंग और टेलिंग हर बीट्स. उनकी जो प्रे करते करते वो ले हुई, और देखते ही देखते उनके जो लिप्स थे वो मूव होना स्टॉप हो गए और वो गुजर गई. शी वॉज डेड. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. फिर उनकी फैमिली ने उन्हें उठाकर ग्राउंड पे रखा और उन्हें एक रेड श्राउड से कवर किया. आफ्टर फ्यू आवर्स, उनके मॉर्निंग के कुछ आवर्स बाद उन्होंने फ्यूनरल की तैयारी करना शुरू की. शाम को उन्होंने एक स्ट्रेचर पे उन्हें लिटाया टू बी क्रेमेटेशन के लिए. और जब सूरज ढल रहा था तब उन्हें लीट किया गया, और उनकी जो फ्लेम्स थी उससे पूरा रूम और वरंडा एक गोल्डन ब्लेज में बदल गया. वी स्टॉप्ड हाफ वे. गोल्डन ब्लेज फैल गई पूरे रूम और वेरेंडा में. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. ये देखकर
ऑथर भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। पूरे वेरेंडा और उनके रूम में एकदम शांति फैल गई। वहाँ पे कई स्पैरोज़ एकदम चुप होके बैठ गई और देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू देम टू देम। The sparrows took no notice of bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. ये देखकर ऑथर को काफ़ी दुख हुआ। ऑथर की मदर ने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए और उन्हें स्पैरोज़ की तरफ फेंका ताकि वो खा सके, उनको फीड कराने के लिए। लेकिन स्पैरोज़ ने उन ब्रेड क्रम्स को थोड़ी भी नोटिस नहीं की और वहीं पे रहे। और जब ऑथर ने और उनके फैमिली ने जो उनके ग्रैंड मदर के कॉर्प्स थे वो हटाए, तब वो स्पैरोज़ धीरे से हट गई और दूसरे दिन स्वीपर आया और वो ब्रेड क्रम्स भी ले गए। सो गाइज, दिस इज़ द होल चैप्टर. आई होप दैट you understand the chapter, and if there is some mistakes happen, I have regret for that. And if you like the video, subscribe the channel and share it to all your groups. And thanks for watching. Thank you.